नमस्कार। इजरायल और गाज़ा की युद्ध को जारी हुए 1 साल से ऊपर गुजर चुका है और इस बीच गाज़ा पट्टी बुरी तरह से तबाह हो चुकी है। जो आबादी थी वो मलबे में बदल गई है। इजरायल के मुताबिक हमास ख़त्म हो चुका है। हमास ने तो फिर भी इजरायल पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, सीधे जिम्मेदार था, लेकिन इजरायल ने हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाया है और इसके लिए लेबनान पर भी अब कहर बरस रहा है। हिजबुल्लाह की पूरी नेतृत्व की पंक्ति ख़त्म हो गई है। इजरायल ने बंकर डिस्ट्रॉयर जैसे बमों का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह के कमांडर को मार डाला है। इनमें एक पूरी लिस्ट है, जो टॉप लीडरशिप है वो ख़त्म हुई है, जिसमें फौद शुक्र, इब्राहिम अकील, इब्राहिम कुबैसी, मोहम्मद सुरूर, हसन नसरल्ला, नबील कुओक सभी मारे गए हैं। यही हाल इजरायल ने हमास का भी किया है। उसका दावा है कि हमास के तमाम बड़े नेता मार दिए गए हैं। सालेह अल अरूरी, इस्माइल हानिया, मोहम्मद दाइफ और यहाँ तक कि आखिर में अब से कुछ दिनों पहले याह्या सिनवर मारा गए। इजरायल ने ईरान के खिलाफ भी मोर्चा खोला है, लेकिन हज़ारों लोगों की मौत और लाखों लोगों की बेघरी के बाद भी इजरायल क्या खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है? उसका कहना है कि जब तक वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होगा, ये हमले होते रहेंगे। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने ये कहा। When is that day after going to come, or has the Israeli political leadership decided to postpone that decision due to several of its own domestic constraints? That's something that many are asking. I have to revert the question back to you, because the question is what kind of day after you want. If you want a day after that will look like the day before, in which, in a completely unprovoked way, you can be attacked by a genocidal terrorist organization, then the answer is I don't want that day after. My day after is a day after in which we achieve military and political and diplomatic arrangements that will give us stability for the long term. And unfortunately, because of the decision of Iran to expand this war, this wasn't Israel's decision. As I told you at the beginning, we tried to stay confined to defend ourselves from the terrible attack against our communities on the 7th of October, one of the most savage attacks ever seen since the Holocaust in Israel, okay? So we wanted to stay focused on that. We didn't choose to expand this conflict. There were other parties that chose to do so. So we will have to give a proper answer to that. And if we succeed, then there is a chance that in the long term, these kind of attacks won't repeat themselves, not only against Israel, but also against other countries in the region and in the world at large. जाहिर है कि इतनी तबाही और बर्बादी के बीच भी इजरायल खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। और क्यों नहीं कर रहा? क्या ये सारी तबाही इजरायल में भी अलोकप्रिय हो रही? बेंजामिन नेतन्याहू ने बस अपनी कुर्सी बचाने और मजबूत करने के लिए की? एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में आई हस्तियां इस बात को रेखांकित करती रहीं कि युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन नहीं रुक रहा। इजरायल अपनी सुरक्षा के नाम पर इस युद्ध को जारी रखे हुए है। What can India do specifically? I don't think they are a mediator at this point. I think they are a convener. Mr. Modi brought Egypt into the BRIC Association back in 2023. Yes. What can India do to try to make sure that when they meet with the Iranians, they try to de-escalate things with Iran, and when the Indians sit down and meet with Israel, they can also say, how do we de-escalate? Yes. I don't think Israel is in a position right now where they're going to draw back and they're going to agree to a ceasefire. I think Netanyahu is going to do all he can to politically cement in the military gains and wait Yes. out for the U.S. election to take place and see who wins between Trump and Harris. तो इजरायल जब तक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता, तब तक बेंजामिन नेतन्याहू ये युद्ध जो है वो जारी रखेंगे, कह रहे हैं टिम रोमर। इजरायल का तर्क है कि शुरुआत उसने नहीं की, उस पर हमला हुआ, लेकिन इस तर्क के पीछे भी ये बात है कि बीते 75 वर्षों में पश्चिम एशिया में इजरायल अमेरिका और यूरोप की मदद से अपनी सुरक्षा के अधिकार के नाम पर कई देशों पर हमले करता रहा है। जाहिर है कि दूसरे देश भी अपनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। ईरान ने बाकायदा 10 नेताओं की हिट लिस्ट जारी की है, जिसमें इजरायल के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सेनाओं को अध्यक्ष और सलाहकार शामिल हैं।
तो ये है ईरान की हिट लिस्ट, जिसमें ईरान ने तमाम टॉप लीडरशिप के नाम दिए हैं। इसराइल की तमाम टॉप लीडरशिप के नाम इसमें हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिसके बाद से इसराइल ने पलटवार किया है। तो इस पे सुनते हैं क्या कहना है त्रिमूर्ति जी का। This tit for tat between Israel and Iran, which has gone on, now that is something which, in my opinion, for the first time ever, when Iranians are able to tell the world that they can actually reach Israel and pierce the Iron Dome, Yes. I think the rules of engagement have been irrevocably reset. Okay. And that is not necessarily in favor of Israel. So if all this put together, is Israel more secure now than before? I'm not so sure, because history tells us that whenever Israel goes into Gaza or when they go into Lebanon, they get caught in a quagmire and they have to finally extricate themselves. सवाल ये है कि युद्ध रुकेगा कैसे, क्या इसे रोकने में भारत की कोई भूमिका हो सकती है। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में सवाल अमेरिकी राजनयिक रहे टिम रोमर ने उठाया। सच्चाई ये है कि आप हमास और हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दें, लेबनान गाज़ा को तबाह कर दें और स्थायी शांति की सोचें तो उससे हल नहीं निकलेगा। दुनिया भर का अनुभव है कि ऐसे टूटे बिखरे संगठन फिर चापामार लड़ाइयों की शरण लेते हैं, मुल्कों को तबाह करते हैं। तो क्या ये युद्ध इसराइल को और सुरक्षित रखेगा या फिर सिर्फ युद्ध और बढ़ेगा। इसराइल के दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने फिर सुझाव दिया है कि इसराइल हमास के साथ भी समझौता करे। इस बीच खबर यह है कि तल अवीव ने उनके होटल के पास भी धमाका हुआ है। तो कुल मिलाकर इसराइल के हमले की हकीकत उसकी सुरक्षा के ख्वाब पे कहीं भारी पड़ रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक डीपी श्रीवास्तव हैं और डॉक्टर खीवराज जागीर हैं जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में हैं। मैं डीपी श्रीवास्तव आपके पास अगर आऊँ तो ये जो बयान आए तरह तरह के, कुछ उसमें से एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के दौरान इसराइल के राजदूत ने कहा, अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने कहा, एक तरह के विरोधाभास हैं कि तमाम टॉप लीडरशिप हमास और अगर हिजबुल्लाह की ख़त्म हो जाती है तो इसराइल की ये लड़ाई पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि वो उसका उद्देश्य था। लेकिन लड़ाई अभी और चलेगी जब तक इसराइल अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता। तो सवाल ये है कि वो मौका या वो दिन कब आएगा? अगर आप मेरी राय पूछ रही हैं जी, तो ये मौका सीज़फायर का तो कई बार आ चुका है और हर बार ये मौका अगर खोया गया है तो इजराइल की तरफ से खोया गया है। जब गाज़ा की लड़ाई शुरू हुई थी तो संयुक्त राष्ट्र संघ के डिस्कशंस के दौरान पहले रूस, फिर ब्राज़ील और अंत में यहाँ तक कि अमेरिका की तरफ से ये प्रपोजल्स आए सीज़फायर के और उसके साथ कि हॉस्टेज की रिहाई की जाए और हर बार इजराइल ने उसको मना कर दिया ना। उसके अब सिनवर के असैसिनेशन के बाद एक ये मौका था और इसमें इजराइल में भी डिमांड्स थी कि अब युद्ध विराम की घोषणा कर दें और बंधकों की रिहाई पे जोर दें। ये मौका भी उन्होंने गंवा दिया। अब युद्ध जो है वो उत्तर की तरफ बढ़ा है लेबनान में, और लेबनान में भी एक तरह से कई लोगों की जान, हिजबुल्लाह के कई नेताओं की मृत्यु के बाद भी ये संघर्ष जारी है। लेकिन इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लेबनान की स्वायत्तता, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वो ना सिर्फ ईरान को, ना सिर्फ इजराइल को रिस्पेक्ट करना चाहिए बल्कि हिजबुल्लाह को भी करनी चाहिए। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जी। लेबनान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी स्पीच में कहा कि लेबनी सेना को लेबनान और इजराइल की सीमा पे नियुक्त किया जाना चाहिए
हमें बड़ी अजीब चीज़ लगती है कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, वो परमिशन मांग रहा है अपनी फ़ौज अपने ही बॉर्डर पे लगाने के लिए। आखिर वो रुकावट कहाँ से आ रही है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रेजोल्यूशन है 1701 1701, उसमें तो ये कहा गया था कि कोई भी नॉन स्टेट एक्टर जी। लितानी रिवर और इसराइल लेबनान सीमा के बीच में नहीं होने चाहिए। उसमें कोई प्रतिबंध लेबनीज आर्मी के लिए नहीं था। तो आखिरकार वो क्यों नहीं पहुंच पाए? जी, जी। उसकी एक वजह ये भी है कि हिजबुल्लाह वहाँ मौजूद रहा और हिजबुल्लाह ने संयुक्त राष्ट्र संघ के रेजोल्यूशन का उल्लंघन किया कई साल तक। हाँ। और जब गाज़ा की लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके बहाने से कहिए, जो भी कहिए, उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी इसराइल पे। तो ये तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं है। तो अगर ये इस लड़ाई को ख़त्म करना है तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गाज़ा में बंधकों की रिहाई हो, सीज़ फायर हो और लेबनान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों रिस्पेक्ट करें। ठीक है। अब इसके लेबनान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी को दोनों ही रिस्पेक्ट करें, ये एक बात है। जो एक दूसरा पहलू है, खिवराज जागिर, एनडीटीवी वर्ल्ड समिट कार्यक्रम में इजरायली राजदूत ने जो कहा कि इजराइल ने इसकी शुरुआत नहीं की, इजराइल इसकी जवाब दे रहा है, लेकिन बार बार इजराइल की तरफ से कहा गया कि उसने ये युद्ध में काफ़ी कामयाबी हासिल की। तमाम टॉप लीडरशिप हमास की ख़त्म हो गई, पूरी पंक्ति टॉप लीडरशिप की अगर हिजबुल्लाह की ख़त्म हो गई, तो क्या ये जंग इजराइल ने अब जीती या किस रिजल्ट का इंतज़ार है जब ये लगेगा इजराइल को कि अब जो जंग है वो पूरी हुई? और ये जो कहा जा रहा है कि द डे आफ्टर, वो कौन सा वक्त होगा या इजराइल सुरक्षित कब महसूस करेगा? क्योंकि उसने कहा कि हम अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, इजराइल की सुरक्षा जो है वो पूर्ण होनी चाहिए। तो इसमें विरोधाभास दिखता है आपको? धन्यवाद नगमा जी। इसमें पूरा विरोधाभास है, पर ये विरोधाभास सिर्फ इजराइल का नहीं है, ये विरोधाभास अमूमन सारे मुल्कों का है। आपने कहा जंग जीती। जंग जीतने और जंग हारने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े विद्वान ने, केनेथ वॉल्स ने एक बार कहा था कि कोई भी जंग जीतने का दावा किसी भूकंप के जीतने के दावा जैसा है। कोई भी जीतता नहीं है, सब हारते हैं, कोई कम हारता है और कोई ज्यादा हारता है। तो इजराइल हो सकता है इतनी मिलिट्री कामयाबी के बाद कहते कि हमने इतनों को मार दिया और अब 10 साल 15 साल ये सारे संगठन फिर से खड़े नहीं हो पाएंगे। पर देखिए, मिसाल देखिए, 1982 में जब यासिर अराफात लेबनान से इजराइल पे हमला करते हैं अपने गुरिल्ला वॉर में, तो इजराइल बेरूत जाता है मिलिट्री के साथ। उस समय यही इजराइल करता है जो आज इजराइल ने किया है लेबनान हिजबुल्लाह के खिलाफ। तो 1982 में जो चीज़ें की गई वो तो आज 2024 में आके काम नहीं आई। तो इजराइल की असुरक्षा एक बहुत ही जटिल मुद्दा है जिसमें युद्ध विराम सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है। मैं आपको मेरे हिसाब से चार बड़ी मुश्किलें हैं इजराइल की, वो सिक्योरिटी थ्रेट्स जिन्हें हम कह सकते हैं। फिलिस्तीन का झगड़ा असुलझा रहे और गाजा और फिलिस्तीन की जमीन पे इजराइल का कब्जा रहे, ये इजराइल की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी। जब तक ये झगड़ा नहीं सुलझेगा इजराइल सुरक्षित नहीं रह सकता, जैसा कि 75 साल में नहीं हुआ। दूसरा, ईरान और उसके जो छुटभइये और जो उसके संगठन हैं वो अपने आप में फिलिस्तीन के झगड़े के परे ईरान इजराइल के साथ एक बड़ी रंजिश लेके बैठे हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ा खतरा है। तीसरा खतरा जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय कहिए एक तरह से बहिष्कार का, आइसोलेशन का, इंटरनेशनल सैंक्शंस का। एक कूटनैतिक बहिष्कार जब किसी देश का होता है तो उसके बहुत सारे हितों का नुकसान होता है, उसकी इमेज, उसका रेपुटेशन, उसके एलाइज के लिए बहुत बड़ा धक्का होता है ये। और जो चौथा बड़ा खतरा है इजराइल को वो है अंदरूनी। इजराइल के अंदर जो एक सेक्टेरियन डिवीजन है जो अब बहुत वायलेंट हो चुका है, जिसमें इजराइल के ही बाशिंदे, यहूदी बाशिंदे दूसरे यहूदी बाशिंदों पे हमला करते हैं, चाहे वो सीज फायर की बात पे हो, चाहे वो बंदियों को छुड़ाने की बात पे हो। अगर हम पहली दो मुसीबतों को देखें, फिलिस्तीन के मुद्दे पे ज़्यादा लोग इजराइल के साथ नहीं हैं, पर ईरान के मुद्दे में
इसराइल की सुरक्षा में गाहे बगाहे अरब के देश साथ हैं, यूरोप के देश साथ हैं, अमेरिका साथ है, और भारत की भी उसमें एक तरह से कहिए जी। अमुक सहमति है। जी मैं 1 मिनट के लिए आपको यहाँ पे रोक रही हूँ क्योंकि एक ब्रेक लूँगी, वापस आऊँगी मैं इस चर्चा पे। और खिवराज जागीर और डीपी श्रीवास्तव जी, ये बात एक सवाल बना हुआ है कि फिर अभी की जो इस समय की जो समस्या है, जिस कारण से ये युद्ध शुरू हुआ इजराइल और गाज़ा के बीच में, उस युद्ध के ख़त्म होने के लिए किस नतीजे का इंतज़ार इजराइल को है, यानी वो कौन सा क्या हासिल करना चाहता है जिसके बाद ये युद्ध बंद हो सकेगा। तो एक ब्रेक लेते हैं हम सच की पड़ताल में और लौटते हैं इस सवाल के साथ। तो इजराइल की गाज़ा में युद्ध जो फैल कर लेबनान में पहुंच चुकी है और उसके आगे इसमें सीधे सीधे शामिल ईरान भी है, तो इस पर बातचीत हम कर रहे हैं कि आखिर इस जंग का अंत जो है वो किस नतीजे के बाद होगा। हमारे साथ डीपी श्रीवास्तव हैं और डॉक्टर खिवराज जागीर है। डीपी श्रीवास्तव जी, ये बात मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इसी वर्ल्ड समिट के दौरान ही ये कहा गया कि ये जो युद्ध है, एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि टॉप लीडरशिप अगर हमास और हिजबुल्लाह की ख़त्म हुई है तो एक तरह से एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये जो वॉर है ये लॉन्ग ड्रॉन वॉर है, तो ये एक विरोधाभास है। और अभी फौरी तौर पे ये जो जंग है वो उसके ख़त्म होने के लिए क्या कंडीशंस इजराइल हासिल करना चाह रहा है, किस सिचुएशन में आखिर इसको द वॉर इज़ ओवर, ये स्थिति कब होगी? अगर आप नेतन्याहू साहब के बयानों पे जाइए तो उनकी एक शर्त है कि जो लेबनान की इज़राइल के नॉर्थ में जो इज़राइली विस्थापित हुए हैं, करीब 60,000 इज़राइली जो हिजबुल्लाह की गोलाबारी से विस्थापित हुए, वो जब तक वापस नहीं जाएंगे ये लड़ाई जारी रहेगी। और इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनकी बात में कुछ हक है, क्योंकि जहाँ तक गाज़ा की लड़ाई है, गाज़ा पे में तो इन्होंने भी अतिक्रमण किया है। लड़ाई की शुरुआत तो ज़रूर हमास ने की थी, मगर इज़राइल ने भी अतिक्रमण किया है। लेकिन जो उत्तर में जो उनका जो बॉर्डर है, उसमें तो पहल लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से हुई है जी। तो उसको रोकना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ इज़राइल की अपनी आंतरिक राजनीति भी इसमें इन्वॉल्व है। नेतन्याहू तो ये समझा जाता है कि नेतन्याहू ये लड़ाई अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए जी बिल्कुल, ये जारी अक्सर बातें रखना हुई चाहते हैं कि उनके अपने और पॉलिटिकल वो कंपल्शंस हैं, वो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइव के लिए लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। पर खिवराज जागीर, फिर अभी हमास की लीडरशिप और हिजबुल्लाह की लीडरशिप, जो टॉप लीडरशिप है, उसे ख़त्म करके इजराइल ने क्या हासिल किया? इसे हम एक शॉर्ट टर्म में एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि इजराइल ने अपनी खोई हुई साख को दोबारा पा लिया है। तो इससे जो क्या वो साख सुरक्षित हुआ अब? और नहीं, वही मैं कह रहा था। जो आपका बुनियादी सवाल है कि इजराइल क्या सुरक्षित महसूस करता है, कतई नहीं करता। आने वाले 10 सालों में कर पाएगा, नहीं कर पाएगा अगर इसी तरह से सैन्य साधनों से वो लड़ता रहा। देखिए, लड़ने के 2 तरीके होते हैं देशों के पास, कूटनीतिक, राजनीतिक और सैन्य। जब देश सारी ताकत सैन्य साधनों पे खोजता है तो वो ऑब्सेसिव मिलिट्री डोमिनेंस वाली बात होती है। उसमें फिर दूसरे देश आपकी साख बचाने या किसी राजनीतिक मध्यस्थता के लिए आगे नहीं लेकिन इजराइल के चारों तरफ अगर हिजबुल्लाह, जैसे इजराइल का कहना है, या हमास जैसे संगठन हैं और वो जेनोसाइडल आतंकी संगठन, इजराइल की एम्बेसडर ने कहा, तो इजराइल के पास किस तरह के ऑप्शन है? क्या डिप्लोमेटिक ऑप्शंस, वहाँ पे कूटनीतिक ऑप्शंस हैं? अब हैं। अमेरिका, सऊदी अरेबिया, भारत, गल्फ के दूसरे देश, यूरोप के सारे देश इजराइल के साथ हैं। देखिए, इसको सीधा समझा जा सकता है। ऑक्यूपेशन और राजनीतिक समझौते में सिर्फ आपके फैसले की देर है। आप सारी विश्व की राय को अपने पक्ष में कर सकते हैं लड़ाई के लिए, अगर आप ऑक्यूपेशन को ख़त्म कर देते हैं। फिर आप लड़िए, फिर आपकी लड़ाई में सारे साथी होंगे। पर जब तक वो अतिक्रमण है, जब तक फ़िलिस्तीन के लोगों की बदहाली है, तब तक इजराइल का दूसरे देशों के साथ एक तरफा सपोर्ट ले पाना नामुमकिन सा है। जी। ठीक है, तो वो ये इस सुरक्षा समय जी वो सुरक्षा यूँ कहिए कि वो मतलब आधी से भी कम तर की सुरक्षा है जो मिलिट्री सुरक्षा है।
तो जब तक ये समस्या वहाँ पे बनी रहेगी, इजराइल पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करे या जो पड़ोस के देश हैं वो महसूस सुरक्षित बने, ये मुश्किल है। ये ज़रूर है कि शॉर्ट टर्म मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस वहाँ पे ज़रूर हासिल हुआ है, लेकिन हाँ, ये लड़ाई लंबी चली है और इससे क्या हल निकला है ये साफ नहीं है अभी तक। लड़ाई जारी है। धन्यवाद आपका डीपी श्रीवास्तव और खिवराज जागीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच की पड़ताल में आज के लिए हमारे पास वक्त इतना ही है। नमस्कार।